Thank you, everyone. uh, this is an immense pleasure for me, particularly to be the part of this Dakshi Gyan Parv 2025. I would like to congratulate all the team of Dakshi, first of all, and I also welcome all the panelists here present for this session. Um, we we are extremely sorry that we are late and we are starting late. Uh, Professor Sheetla Prasad Shukla ji is with me. Okay, Dean Lal Bahadur Shastri, I welcome you, sir. Um, then the young and dynamic commando of that is our pride, Mr. Neeraj Vashishtha. I welcome you too. Upasna Tiwari ma'am, Department of History, DRC, and my co-fellow, Mr. Dharmendra Kumar ji from Maitri. Okay, he's from Sanskrit department. Okay, just dwelling deep into this discussion, I begin with the uh, argument that I started in the boardroom. That was 1902 when Swami Vivekananda was invited in Paris conference in France, and he delivered his lecture on Indian science, Indian astronomy, and the Indian way of thinking on Indian science. After his complete lecture, the Max Muller was there and he asked one question to Swamiji. And the question was, Swamiji, I agree with you all, your all claims. But you accept that the astronomy, particularly, you learn from the Greeks. Okay. So when this question was asked by a very prominent person, Swami Vivekananda answered, and that answer is very particular, to the point, and that must be it must be remembered by everyone. The line he said, he answered, "Arkecha madhuvindante kimartham parvatam bhajet." This was the line. अर्केच मधुविंदंते किमर्थम पर्वतम भजे, जिसके घर में खुद के शहद के भंडार लगे हो, वो बाहर दरियाओं में, जंगलों में उसकी खोज करने बाहर क्यों जाएगा? अर्केच मधुविंदंते किमर्थम पर्वतम भजे. तो वो कहते हैं कि मैं 1902 की बात बता रहा हूं, स्पेस टाइम थ्योरी को आने को टाइम है. उस वक्त ये डिबेट है कि स्पेस एंड टाइम, these two concepts are different. All the physicists are talking about these two concepts before Einstein. Space and time, these two concepts are different. But before 1902, even in Belgavi, Karnataka, Swamiji had a discussion with a physics professor, and Swamiji saying that my Vedanta says me space and time are not different. This is one concept, and that is a space time. And you will see Einstein proved the same. While discussing these all points, just to be a proud, my first question to the प्रोफेसर शुक्ला सर, आपसे मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा को हम कैसा देखते हैं और हमारी प्राचीन धरोहर को केवल स्वाभिमान के रूप में, एक गर्व के रूप में देखना और उसको वर्तमान में कैसे जोड़ा जा सकता है. आपसे मेरा पहला प्रश्न. या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः. हमारी ये चल रहा है. हाँ, हमारी जो सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा है, यह है अनादिकालीन समय से ये चली आ रही है. जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, उद्भव हुआ है, तब से भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रादुर्भाव माना जाता है. क्योंकि हमारे यहाँ क्रमिक विकास की बात नहीं है. हमारे यहाँ ऐसा है कि
यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले था, जैसे पहली सृष्टि थी उसी प्रकार से दूसरी सृष्टि की भी रचना हो जाती है। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब प्रलय करना चाहते हैं, कब सृष्टि करना चाहते हैं। तो सृष्टि का जो संविधान है, जो ईश्वरी संविधान, उसी के अनुसार जो है सर्गस्य प्रत्सर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षण, जो 5 लक्षण बतलाए गए हैं इस सृष्टि के संचालन कैसे होते हैं, कैसे सर्ग होता है, कैसे उसका प्रलय होता है, कितने प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य है, नैमित्तिक है, प्राकृतिक है, आत्यांतिक है। तो अब उसमें जो है आपका नित्य प्रलय की जब बात करते हैं हम, तो नित्य प्रलय वह है जो नित्य प्रतिदिन एक तरफ जो है लोग शमशान पर जो है उनका दाह संस्कार हो रहा है और दूसरा जो है बच्चों का जन्म हो रहा है। तो नित्य प्रलय में इधर सृष्टि भी हो रही, इधर प्रलय भी हो रहा है, तो ये नित्य प्रलय के उसमें आता है। और दूसरा जो है हमारा प्राकृतिक नैमित्तिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय हमारा ये है कि ब्रह्मा का एक दिन जो है वह 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जो ब्रह्मा का दिवस है उतनी ही रात्रि होती है। तो जो उतनी ही रात्रि है उतनी कालखंड की, वही जो है वो हमारा जो है प्रलय माना जाता है, नैमित्तिक प्रलय माना जाता है। इसमें जो है 71 जो है चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है, तो उसको एक कल्प कहते हैं। तो इतने बड़े व्यापक कालखंड को मापने के लिए हम जो है मनवंतर और उसको कल्प का सहारा लेते हैं, उससे नापा जाता है। हमारे यहाँ ईस्वी सन की बात नहीं, ना हमारे यहाँ ईस्वी है, सन है, न ये सब। हमारे यहाँ जो मनवंतर है, कल्प है, उससे हम नापते हैं सृष्टि को। तो आज जो है, आज की जो इतिहास लेखन है, आज के जो ये सारी जो ज्ञान परंपरा है, इस ज्ञान परंपरा से कहीं हमारी ज्ञान परंपरा बड़ी ही उन्नत रही है। तो इसलिए हम जो कहते हैं उस बात को आज के लोग नहीं समझ पाते हैं, आज जो लोग कहते हैं उसको हम नहीं समझ पाते हैं। बड़ा डिफरेंस है हमारे इनके बीच में। क्यों? क्योंकि हम तो अनादिकालीन अरबों खरबों वर्ष के इतिहास की बात करते हैं, और आप जो है ये केवल पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और इतने शक संवत से ये सब लेके चलते हैं। तो इसीलिए जो ज्ञान की परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये अनादिकालीन है, आज से नहीं है। कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए। ब्रह्मा की आयु अगर आप देखें तो 100 वर्ष की है। 100 वर्ष कौन सी? वो दिव्य 100 वर्ष है, जिसका एक दिन जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। उसका सोचिए उसका आयु कितनी होगी। उसको हम 2 परार्धों में नापते हैं, प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध। अभी ब्रह्मा का 51वां वर्ष चल रहा है। जब 51 वर्ष के बाद जब उनका और आगे चलेगा, उनका 100 वर्ष जब पूरा होगा, तब जाकर के प्राकृतिक प्रलय आएगा। तो उतने ही कालखंडों तक जो है वो पृथ्वी फिर जो है जल में डूबी रहेगी। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इस पे अगर कभी आप हमको इस पे थोड़ा सा और बोलने का अवसर देंगे तो बहुत व्यापक हम आपको इस पे बतला सकते हैं कि कैसे क्या है, कैसे सृष्टि की क्या रचना है, कैसे ईश्वर एक कृषक है, वो किस प्रकार से वो खेती करता है जीवों की, कैसे उसको उत्पन्न करता है, कैसे कैसे उसके लिए संसाधन उत्पन्न करता है। ये बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का आशय यही है कि एक जन्म तो नहीं, कई जन्म लगेंगे सनातन संस्कृति को समझने के लिए, इस पूरे ईश्वर के रहस्य को समझने के लिए। 2 बातें हैं, एक तो अपरा ज्ञान है और एक परा ज्ञान है। अपरा ज्ञान में सारे सांसारिक ज्ञान जितने हैं, जिनको हम जो है व्यवहार में लाते हैं, सब करते हैं। और परा ज्ञान वह है जो ईश्वरी ज्ञान है, जो साधक जन जानते हैं, जिसको जो एक रिले जब होता है वहाँ कि आज यह घटना प्रकृति में घटित होगी, तो सबके पास नहीं आता है। वो केवल कुछ ही जो गिने चुने लोग होते हैं उनके पास वो रिले हो जाता है, वो जान जाते हैं, लेकिन वो उसका प्रकाशन नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध है। तो इस प्रकार से ढेर सारी रहस्यमय चीजें हैं। पूरी प्रकृति हमारी
पूरा सब रहस्य से भरा हुआ है, ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। एक एक चीज पे अगर हम चर्चा करें, एक एक वस्तु पर, एक एक तत्व पे चर्चा करें, तो बहुत व्यापक चर्चा इस पे हो सकती है। और अगर कुछ किसी को कोई शंका है तो हमसे। थैंक यू सर। सर ने पृथ्वी की उत्पत्ति, उसका विकास का क्रम जो भारतीय परंपरा में आता है, इसी संदर्भ में उपासना जी मैं आपसे पूछूंगा कि फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स और एक फैक्चुअल डिस्कोर्स, हम दोनों इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर हम फैक्चुअल डिस्कोर्स में जाएं तो भारतीय परंपरा, ये ज्ञान पर्व कहाँ से शुरू होता आपको दिखता है, और उसका स्वरूप या फिर उसका जो व्यापकता है वो बताइए। Thank you so much, sir, distinguished panelists and dear students. Thank you for having me here. It's my privilege to speak on this topic, Indian knowledge parampara, past, present and future. Sir, it's a very relevant question. क्योंकि आप जैसे यंगस्टर का पहला क्वेश्चन ही यही रहता है कि हम क्यों माने। और साइंस के इस एरा में जब हम 21st सेंचुरी में रन कर रहे हैं, एआई का टाइम है, ऐसी सिचुएशन में हम फिलॉसफी की बात करेंगे कि हम जॉब की बात करें, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करें, क्या करें? तो एक बहुत सारे डायमेंशन निकल कर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो आपके मन में यूजुअली होता है। आज आप यहाँ बैठे हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा तो है, लेकिन यहाँ जाने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आने लगता है कि हम क्या करेंगे इसका और कैसे ये शुरू हुआ, हमारा एक्चुअली हमें पढ़ना कहाँ से है, ये इंडियन नॉलेज परंपरा का कोई एंड है या स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन नॉलेज सिस्टम, it's stretched from the Vedic period. Why Vedic period? Because literary sources are available from Vedic period. उसके पहले हमारे पास material remains हैं, archaeological evidences हैं, inscriptions form में हैं, scripts हैं, जिसको हम अपने बुद्धिमत्ता के बेसिस पे ही डिसाइफर कर सकते हैं। लेकिन वेदास जो हैं, इट्स अ ओशन, आप वहाँ से अगर एक डायमेंशन निकल कर आए तो वो एक ड्रॉप के बराबर होगा। तो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द वैदिक पीरियड, वेदास, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, धर्मशास्त्र, स्मृतिज, कमेंट्रीज, जितनी भी चीजें हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, जितने भी म्यूजिक के फॉर्म है, 187 फॉर्म, क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस, 500 प्लस रागास, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो बहुत छोटी चीज है। और वेदांग को जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। उसमें जितने आप गहराई में उतरते जाओगे नई चीजें चली आएंगी। जहां तक ये प्रश्न है कि हम तथ्य, फैक्ट और फिलॉसफी को कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे अलग करें, और वो उसकी क्या लिमिटेशन है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय नॉलेज परंपरा हो या आज का मॉडर्न साइंस हो, philosophy and spirituality both are integrated with the knowledge system. What is spirituality? आप जब स्पिरिचुअलिटी को शब्द में लेते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आता है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक किसी भी कलर का पर्टिकुलर टाइप का अटायर पहन लो, व्हाइट या नारंगी कलर जो भी, और आप चंदन लगा लो, कुछ रुद्राक्ष की माला डाल लो और आप कहीं एकांत में बैठकर भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, डिवोशनल भक्ति कर रहे हो। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज नॉट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही अटेंशन होता है, कंप्लीट डिवोशन टू पर्टिकुलर थिंग्स, चाहे वो गॉड हो चाहे वो एजुकेशन हो। इस तरह से स्पिरिचुअलिटी इंटीग्रेटेड है एजुकेशन के साथ। ये कोई नई चीज नहीं है, इट इज एग्जिस्टेड इन माई पास्ट ऑल्सो, और प्रेजेंट में तो है ही है। आप जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, आप जिसको डेडिकेशन बोलते हैं, दिस इज कंपोनेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी कोई नई चीज नहीं है। और जहां तक बात है फिलॉसफी की, फिलॉसफी के बिना कोई सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। फिलॉसफी की बात जब हम करते हैं, इट मीन्स रीजन, तर्क। बिना आप उसको तार्किक क्रिटिकल एनालिसिस को, अगर किसी सब्जेक्ट को आप एज इट इज याद कर रहे हैं तो इसको रटना कहते हैं, इसको समझना नहीं कहते, इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो उसके साथ फिलॉसफी का इंटीग्रेशन जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स। भारत में जब मैथमेटिक्स आई, इवन सिंपल एग्जाम्पल आप आर्यभट्टियम का ले लो, उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जब किया तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा था। उन्होंने कई सालों तक देखा होगा कि कैसे प्लैनेटिक मोशन होते हैं, कैसे उनका कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस तो है नहीं कि आज कोई भी उपग्रह आप भेज दे रहे हो, कोई मशीनरी आप ऊपर भेज दे रहे हो और वो हमें डेटा भेज रहा है, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। यहाँ पर बैठा हुआ एक इंसान सटीक कैलकुलेशन करता है जैसा कि आपका मॉडर्न साइंस कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी नॉलेज, उसका मेडिटेशन, उसका डेडिकेशन कितनी हायर लेवल पे रहा होगा। So it's not isolated. First you need to understand, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको फिलॉसफी पढ़ना जरूरी होगा। फिलॉसफी, अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स इज ऑल्सो नॉट आइसोलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी। वाई? क्योंकि फिजिक्स में जो सब्जेक्ट है, चाहे मोशन हो, चाहे टाइम हो, स्पेस, सर ने टाइम और स्पेस की बात की, दे आर नॉट आइसोलेटेड। वन थिंग इज स्पेस एंड टाइम। टाइम का कोई अभी तक डेफिनेशन ही नहीं। इवन बिग बैंग थियरी जब आई तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने टाइम का कोई परिभाषा ही नहीं दी, कोई डेफिनेशन ही नहीं दी अभी तक। तो टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको सिर्फ समझा जा सकता है और अपने एक इनर माइंड से। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट आइसोलेटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जहां तक हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, नई डायमेंशंस निकल कर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी है, एल्केमी, ये सब सारे सब्जेक्ट तो पुराने ही हैं, हालांकि इकोलॉजी को हमने नया पार्ट बना दिया। इकोलॉजी इज डीपली रूटेड विद आवर एवरी डिसिप्लिन, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे सोशल साइंसेस हो, चाहे वो मानविकी के जितने भी विषय हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं इंट्रीगेट है, जुड़ा हुआ है। उसमें इकोलॉजी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। भारत के हर, इवन कोड ऑफ कंडक्ट, सुबह से शाम तक, जब तक आप उठ रहे हो, जब तक आप सो नहीं जा रहे हो, तब तक हमारी लाइफ उससे जुड़ी हुई। आप पेड़ों को, रात में मम्मी पापा कहते हैं पेड़ को हिलाओ मत, टच मत करो, छुओ मत। यहाँ हमें तुलसी का प्लांट मिल रहा है, नीम की पूजा, पीपल की पूजा। पेड़ों के नीचे रात में ज्यादा देर ठहरो मत, क्योंकि वो रात में हो सकता है CO2 निकालते हैं। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नॉलेज परंपरा में हिडन है और वो हम जी भी रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा, जैसा कि सर ने बताया थोड़ा सा, कि एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ा भारत में, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत बार इन्वेजन का शिकार रहा भारत। नई नई परंपराएं आई, नई नई संस्कृतियां आई, कुछ का कोलैबोरेशन हो गया, कुछ मिंगल्ड हो गई, कुछ अपने आप को आइसोलेट करके अलग फॉर्म में जिंदा रखी। लेकिन भारत की भारतीय परंपरा सतत रही, निरंतर रही, कंटिन्यू रही। आज हमें उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है जगह जगह में। वो स्कैटर्ड हो गई लेकिन वो समाप्त नहीं हुई, उसका एग्जिस्टेंस एक्सटेंट नहीं हुआ है, वो है अभी भी। वो या तो ट्राइबल कम्युनिटी के रोजमर्रा के जीवन में है, या आपके रोजमर्रा के जीवन में है, जो आप करते हो डेली प्रैक्टिसेस, उसमें जिंदा है। बस हमें उसे इंटीग्रेट करने की, उसको कंपाइल करके एक नए प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। उसे किसी भी रिवाइवल की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड, हमें उसे कंपाइल करने की जरूरत है। ठीक, तो ये कोई फिलोसफिकल फॉर्म नहीं है जो आप घर पे करते हो। वी हैव टू अवेयर, अवेकनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एवरीवेयर। आपके इस रूम में भी है, आप यहाँ दीप लाइटनिंग कर रहे हैं। लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है? शुरू जब कोई काम किया जाता है उसके लिए दीप प्रज्वलित क्यों किया जाता है? क्योंकि ये उस कक्ष में ऊष्मा देता है, एनर्जी प्राण होती है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो शरीर हो, हर जगह एनर्जी जब तक नहीं होगी तब तक हम आगे कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सिंबलाइज फॉर्म होता है अग्नि, उस ऊष्मा का, ताकि वो हमारे अंदर भी एनर्जी आए और हम वो काम अच्छे से कर सके। तो आप जहां भी जा रहे हैं, हर जगह इंडियन नॉलेज परंपरा है और आपके साथ चल रही है, डीपली रूटेड है। आपको जरूरत है उसको रिकॉग्नाइज करने की, आपको जरूरत है उसको पहचानने की और अपने माइंड की अवेकनिंग की। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लंबे टाइम से चला, और खासकर कॉलोनियल पीरियड में, जब हमारे इंडियन नॉलेज परंपरा से हमको काट दिया गया, दिखाया गया कि हम असभ्य हैं। हमारी जो ये नॉलेज परंपरा चल रही है, परंपरागत एजुकेशन है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं,
आप वेल अप टू डेट नहीं दिखेंगे, आप मॉडर्न नहीं दिखेंगे। इस तरह से करके हमारा ब्रेन वॉश किया गया और धीरे धीरे करके सिलेबस के थ्रू, आपके टीचिंग कैरिकुलम के थ्रू, आपके एकेडमिया के थ्रू उसका नेचर पूरी तरह चेंज कर दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब रहा जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंट एजुकेशन पॉलिसी तैयार किए, उसमें भी हमने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा। आपको मैं एक सिंगल एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ, हिस्ट्री की शोधार्थी हूँ, दोनों ही चीजें कहूंगी। इसलिए क्योंकि मेरा हमेशा जिज्ञासा रहती है अपनी चीजों को एक्सप्लोर करने में, नई नई चीजों को जानने में। हमने जब पढ़ा बाय इंटरेस्ट कि भारत में क्या पॉलिसी रही, हिस्ट्री जब हमारी लिखी गई, 1954 के आसपास एक कमीशन बैठाया गया, एक कमिटी बैठाई गई, जिसमें यह कहा गया कि आप आनन फानन में 6 ईयर में आप इतिहास लिख के दे दीजिए। और वो कमीशन कमेटी किसके गाइडेंस में थी? आरसी मजूमदार की। बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, उनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन डिनाई कर दिए गए और फिर एक परंपरा नई चली। 1970 के दशक में एक नया डिबेट आया मार्क्सिस्ट अप्रोच हिस्टोरियंस का, एक नई विचारधारा इम्पीरियलिस्ट अप्रोच हिस्टोरियंस, और उन्होंने अपने अपने तरीके से बुक्स लिखी और उसी का रिकमेंडेशन हमने कर दिया और सिलेबस प्रिपेयर कर दिया। वो भी सुधार नहीं हो सका। आज जिस इंडियन नॉलेज परंपरा की हम बात कर रहे हैं, ये नई चीज नहीं है कि आज हम 2018-2016 की ये बात कर रहे हैं। 2002 में एक बार ये विषय उठा जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इंडियन नॉलेज परंपरा को फिर से रिवाइव करने की बात आई, लेकिन फिर से ये ठंडे बस्ते में चला गया। बाद में कोई इस पे काम नहीं हो पाया। आज मैं बहुत खुश हूं कि सरकार, मंत्रालय इस पर बहुत सजगता से काम कर रही है और हमारे और आप जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भारत में जो कुछ भी है, जिस चीज को हमें उसके डायमेंशन को चेंज करके पढ़ाया गया। जैसे कि थेल्स का आप थेल्स पढ़े होंगे, अगर थेल्स की थ्योरम पढ़े होंगे। थेल्स की थ्योरम नई नहीं है। आप अगर टेक्नोमेट्री का थ्योरम पढ़ते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर, अब वो भी नई चीज नहीं है। टेक्नोमेट्री इज नॉट न्यू। ये साहुल सूत्र के पूरे डायमेंशन को नापने का एक तरीका था। ये था हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन हमने उसको नया नाम दे दिया। ग्रेविटी कोई नई चीज नहीं है। न्यूटन ने 16वीं शताब्दी में नहीं कोई इजाद कर दिया। ग्रेविटी ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले दिया कि हर वस्तु अपनी तरफ आकर्षित होती है और जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के आकर्षण से वो नीचे आके गिरती है। ये पहले ही सिद्धांत दिया जा चुका है। हमें आज उसे रिवाइव करने की जरूरत है और कुछ भी जरूरत नहीं। आप जितना कठिन तरीके से इंडियन नॉलेज परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेंगे, उतना ही आपके लिए डिफिकल्टी होती जाएगी। आपको लगेगा ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने दैनिक जीवन में भी देखने की कोशिश करेंगे तो हर चीज एग्जिस्ट करती है। बस हमें अपने माइंड को ओपन करने की जरूरत है और उसको इंडिजिनियस नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इट्स नॉट मैटर ऑफ सब्जेक्ट फॉर एग्जेजरेशन कि हमारा नॉलेज सिस्टम इतना बड़ा था, ये था, वो था, उसको ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो समझ में आता है आज उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है और ये काम हो रहा है। लकीली आई बीन पार्ट ऑफ द NCERT बुक्स राइटिंग। उसमें मैं 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का एडिशन कर रही थी और उसमें कुछ एडिटिंग थी। तो मैंने देखा कि 8th क्लास की बुक में जो आपका एकमात्र 2-3 लाइन में दिया रहता था पहले कि हार्डी और लिटिल वुड के साथ नंबर सिस्टम पर रामानुजम ने काम किया। आज इन्फिनिटिव मैन के नाम पे पूरा एक चैप्टर है। आर्यभट्टियम की पूरी थ्योरम पे एक चैप्टर दे दिया गया है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र में निकल कर आएगी। जहां तक मेरा नॉलेज है, मैंने 4-5 जगह ऑलरेडी लेक्चर दिया और मेरे नॉलेज में लगभग 15 यूनिवर्सिटीज हैं जिसने अपने मास्टर कोर्सेज चला दिए इंडियन नॉलेज सिस्टम में। उनके यहाँ मास्टर शुरू, गुजरात यूनिवर्सिटी, तिरुपति संस्कृत यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, दाचिग्राम यूनिवर्सिटी, उड़ीसा के 2 यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, नॉर्थ ईस्ट की कई सारी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। मेहुल ने
ने इनिशिएटिव लिया है, अभी वहां पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये मत सोचें कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। जहां तक इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की बात है इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ, मिशिगन यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया कि भारतीय कल्चर के साथ, इंडियन कल्चर के साथ भारतीय नॉलेज परंपरा को इंटीग्रेट करके वहां पर एक कोर्सेज चलाए जाएंगे, और वो अब हमें ग्रांट भी देंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर से। अभी रिसेंटली फिनलैंड, डेनमार्क, कुछ कुछ यूरोपीय कंट्री में जिन्होंने अपने इंडियन स्टडी के साथ इंडियन नॉलेज परंपरा को जोड़ा है और उसके कुछ विषय पर शोधार्थियों को भी आमंत्रित किया है। तो ऐसे नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि भारत का जो आपके एकेडमिक सिलेबस है वो पूरी तरह चेंज हो चुके होंगे, और ये इनिशिएटिव ऑलरेडी ले लिया गया है। आप एनईपी का सिलेबस उठा के देखिए, चाहे वो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हो, चाहे स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो, या जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेज हो, they have introduced multiple things, Vedic maths, Ayurveda, happiness, ऐसे बहुत सारे नए सब्जेक्ट हैं जो कि पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम के, वो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आपको बस उसको पहचानने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और आप ये मत सोचें कि इंडियन नॉलेज परंपरा की बात हम जब कर रहे हैं तो इट इज काइंड ऑफ फिलोसफी, इट्स रियलिटी, राइट। एंड नेक्स्ट अगेन एक बात और हम आपसे कहेंगे कि आज के टाइम में लोग बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए कोई सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। सो मल्टी डिसिप्लिनरी इज नॉट न्यू थिंग, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अ इंडियन नॉलेज सिस्टम। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा नहीं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स से एस्ट्रोनॉमी इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। ये फिलॉसफी जुड़ा हुआ है, उसी से आप कैलकुलेशन निकालते हो, उसी से आपका एस्ट्रोलॉजी जुड़ा हुआ है, उसी से आपके और सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें जैसे न्यूमेरिकल्स है वो निकालते हैं हम। बाद में टेक्नोमेट्री का जो फॉर्म है वो भी मैथमेटिक्स और दोनों को अलग करके बनाया गया। वैदिक मैथमेटिक्स के जो और सारे डायमेंशन निकल कर आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मैथ से जुड़े हुए हैं, भले ही उसमें एक अलग तरीके का डायमेंशन दिखाई पड़ता है। इकोलॉजी की बात हम करें तो केमिस्ट्री के साथ जुड़ा है, फिजिक्स के साथ जुड़ा है, मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा है, हर सब्जेक्ट के साथ इकोलॉजी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज नॉट न्यू थिंग जिससे आपको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि आज आप मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए। ये ऑलरेडी अपने नॉलेज सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। अगेन आज से प्लीज जागो और अपने आसपास की चीजों को देखो जो अनएक्सप्लोर्ड है, लोब साइडेड है, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। इंडियन नॉलेज सिस्टम इज नॉट अ न्यू थिंग, इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अमंग अस, हमारे बीच में है, हमारी रोज की लाइफ में है, हमारी डेली की लाइफ में हम वही जी रहे हैं। बस उसको थोड़ा सा हमें एक सब्जेक्ट के पार्ट में ले आने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर एक शोधार्थी की भावना नहीं जागृत होगी, तब तक आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे तब तक इस नॉलेज को हम भूल जाएं कि मॉडर्न नॉलेज के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे एसोसिएट करना है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। Thank you, Upasna ji. Upasna ji has told us how our texts get adulterated, how our brain get manipulated. And I must mention, just quoting जेम्स मिल की किताब आप लोगों को पता होगी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल भारतीय समाज, जो जेम्स मिल भारत में कभी नहीं आया, ठीक है, जेम्स मिल, माल्थस, मार्क्स, इवन मॉन्टेस्क्यू, इन सबका जो सोर्स क्या है पता है आपको? भारत को देखने का सोर्स, भारत को देखने का चश्मा जो है वो है फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर के आधार पे ये सब लोग भारत को देखते हैं। जेम्स मिल भी भारत नहीं आया, लेकिन भारत के बारे में जेम्स मिल लिखता है, दीज पीपल आर रेचिड, मेंडेशियस, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड एंड बार्बरिक। ये विशेषण जेम्स मिल ने लगाए हैं। अगर मैं रुडियार्ड किपलिंग की बात करूं तो रुडियार्ड किपलिंग कहता है भारतीय समाज के बारे में, जो मुंबई में ही पैदा हुआ था, वो कोई ब्रिटेन में पैदा नहीं हुआ था, ब्रिटिश था,
और वो कहता है कि these people, Indian people, are deceitful. They're good at abstract, but not for digging the deep knowledge. And these mains are promiscuous. ये शब्द प्रयोग वेस्टर्न्स ने भारतीय परंपरा को डिफाइन करने के लिए दुनिया में जो इमेज बनी, तो ये क्या है? दीज आर प्रोमिस्क्यूअस पीपल, दीज आर रेचिड, मेंडेशियस एंड अनसिविलाइज्ड। ये जब हमें बोला जाता है तो हम अपनी धरोहर की ओर देखना बंद कर देते। एक समय था इस देश में जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर कहता था, मुझे गधा कह लो लेकिन मुझे हिंदू मत कहो। ये समय था, यानी अपनी परंपरा पे, अपनी धर्म की धारणा पे इतना शर्मिंदगी लोगों को महसूस होती थी। तो नाउ द टाइम हैज चेंज, हमने फिर से उसके ऊपर देखना शुरू किया। मैं धीरेन्द्र जी से मेरा प्रश्न रहेगा, और धीरेन्द्र जी आप बताएंगे कि संस्कृत के आप प्रोफेसर है, संस्कृत के टेक्सचुअल मुझे रेफरेंसेस बताइए जहां से जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा झलकती है। बहुत धन्यवाद सर। सभी मंचस्थ विद्वज्जन, मैं एक बार करेक्ट कर दूं, धर्मेंद्र नाम है मेरा, नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। बहुत अच्छा सत्र हमारा चल रहा है। मैं बिल्कुल यही कि जो टेक्सचुअल हम कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम को जान सकते हैं उस पर आऊँ, उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इतने यहाँ पर बैठे हैं बच्चे, क्यों जरूरी है भारतीय ज्ञान परंपरा? आप लोगों ने सोचा कभी क्या आवश्यकता है भारतीय ज्ञान परंपरा की? तो इसके विषय में मैं सोच रहा था, मैं ही आप लोगों के सामने अपना विचार रख देता हूं, फिर आप लोग सोचते रहिएगा। सपोज करो अभी हम मंच पर बैठे हुए सभी लोग हैं, हम अपना मुंह इधर कर लें और आपका फिर मुंह इस तरफ रहे, ठीक है ना? और अभी आपका फेस हमारी तरफ और हमारा फेस आपकी तरफ, एक दूसरे को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक इसी बात को अब हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि जो वर्तमान में हमारी सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं देश में विदेश में, हमारा मुंह तो जो है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ है। हम देख किधर रहे हैं? अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, और जो पीठ है वो किधर हमारी हो गई है? भारत की तरफ हो गई है। इसलिए जरूरत है कि हमें कहां देखना है? भारत की तरफ देखना है, अपनी तरफ देखना है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा जरूरी है। दूसरी तरीके से और एक इसका कि क्यों जरूरी है, आप सब लोग हमारे जितने भी स्मृति ग्रंथों के ही जो अभी मैडम बता रही थी सारे ग्रंथ, उसमें रामायण महाभारत तक आती है बात, और महाभारत की घटना याद करें तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वहां श्री कृष्ण भगवान का है, और साथ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे हो सकते हैं वो अर्जुन है। तो वहां इतना दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध की तैयारी है। अब उस सिचुएशन में एक ही व्यक्ति, और किसी को नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति, उसे विषाद होने लगता है, उसे शोक होने लगता है। वो कौन है? अर्जुन है। तो इतने कोलाहल, वहां दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हों, लड़ने को मारने को तैयार हैं, और एक व्यक्ति उस, और आप सोच सकते हैं का क्या महाभारत का जो उपदेश है, गीता का जो उपदेश है, किसी क्या ऐसे हॉल में बैठ करके दिया गया था? कहां दिया जा रहा था? युद्ध के मैदान में। तो निश्चित है ना को कोलाहल मतलब शोर शराबा, वहां बहुत ही शांति तो नहीं होगी। उस सिचुएशन में भी उपदेश दे दिया गया, किसको? अर्जुन को। क्या उपदेश दे दिया गया? कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए। तो आज फिर वही सिनेरियो हमारे सामने है कि बहुत सब तरफ से आप कोलाहल देख रहे हैं, और अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ अपनी दृष्टि डाल पाए और उसकी तरफ हमने अपना फेस कर लिया, तो हम अर्जुन की तरह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और आगे जो अभी लोग फिलहाल बहुत हल्के रूप में ले रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनाना है, और विश्व गुरु बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मैं निश्चित रूप से कहता हूं जिस दिन आप जैसे युवा जनरेशन इस तरफ फेस कर लेंगे और वैसे कोलाहल में भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर देखने लग जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग क्या है, वही ज्ञान प्राप्त कर जाएंगे और फिर दुनिया को राह दिखाएंगे, दुनिया को मार्ग दिखाएंगे। अब बात आती है, सर ने जैसे मेरे से प्रश्न पूछा कि टेक्सचुअल, मैं बात अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले आ गए, वहां बैठे हुए थे तो हम बात कर रहे थे, और साथ में फिर और मुझे प्रमाण मिल गए आपके, सब कुछ सर्वे सर्वा हैं अक्षित जी, तो उन्होंने बताया कि मैं अद्वैत वेदांत पढ़ रहा हूं।
तो अभी रिसेंट हमारे 7th सेमेस्टर में एक पेपर लगा हुआ है, उस पेपर का नाम है उसमें अद्वैत वेदांत के ही ग्रंथ को लेकर के एक मधुसूदन सरस्वती हुए हैं, उनका ग्रंथ है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रस्थान भेद। उसमें पूरा बताया गया है कि कौन कौन से हमारा जो पूरा साहित्य जैसा भारतीय ज्ञान परंपरा का रहा है, उसमें 2-3 के उदाहरण देता हूं मैं। आपने ऋषि का नाम सुना है विश्वामित्र। अब देखिए कि उनके द्वारा सब वहां सबसे स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी 14 विद्याओं के माध्यम से होती है। आप लोग 14 विद्याएं जो स्किल्स की आज बात हो रही है, वो स्किल्स का मुझे लगता है वो शुरुआत वहीं से है। तो मैं उन 4 वेदों को छोड़ दीजिए, आप मत गिनिए, अभी आप 6 वेदांगों को मत जोड़िए, न्याय मीमांसा और उत्तर मीमांसा इनको आप मत गिनिए, पर बेसिकली जो मुख्य चीजें जहां पर आ रहा हूं, जो आप जिन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, वो 4 उपवेद हैं। क्या आप में से कोई जानता है उपवेद 4 कौन कौन से हैं? कोई बात नहीं, आप यहां हैं तो मैं तो सोच रहा था बैठे बैठे कि इस बार ये ऐसा कार्यक्रम अगर पैनल डिस्कशन हो ना, ओपन में कराइए, ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे उससे। तो 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र। अब आयुर्वेद पे मैडम भी बोल रही थी, सर ने भी बोल दिया। अब आप आइए और यहां आप समाज से इसको जोड़िए। आप लोग दीपावली पे पूजा करते हैं, जिसे आप धनतेरस कहते हैं। क्या पूजा की थी हम लोगों ने? किसकी पूजा की थी? ज्यादातर हम लोग पैसों की पूजा, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जबकि क्या है वो? धन्वंतरी जयंती है। हम सब भूल चुके। ये भारतीय ज्ञान परंपरा हमको उस तरफ लेके आएगी। हमें हेल्थ ओरिएंटेड सोच वहां डेवलप करनी चाहिए धन त्रयोदशी या धन्वंतरी दिवस के दिन, कि धन्वंतरी वो ऋषि हैं जिन्होंने आपके सामने पूरा हेल्थ का पर्सपेक्टिव रख दिया ला करके, जो कि उनकी अगर वो अवतरण की हिस्ट्री पढ़ें, आप इतिहास पढ़ें, तो वो कहां से कैसे करके आयुर्वेद का सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए जरूरी है भारतीय ज्ञान परंपरा। दूसरा मैंने कहा आयुर्वेद, फिर उसके बाद धनुर्वेद। धनुर्वेद के वहां मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि रचनाकार जो है वो विश्वामित्र ऋषि हैं। अब धनुर्वेद आज वही तो है, सारे देश युद्ध में उलझे हुए हैं और सब वेपन्स की बात हो रही है। तो हाँ, बेसिकली नाम ही सुन रहे हैं ना आप, धनुर्वेद। और हमारे सारे योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन, और कौन जो धनुर्विद्या में ज्यादा स्किल जिनके पास सबसे बेस्ट था, सारे धनुर्विद्या में इतने धनुर्धर थे। कर्ण जो अभी महाभारत में रोल प्ले किया और उनका स्वर्गवास हुआ। तो ये आप सोचिए कि वहां वेपन्स बनाने के लिए क्या है धनुर्विद्या, इसके बारे में। और जो छोटे छोटे और आगे जो हम लोग रामायण महाभारत में वो सीन देखते हैं कि वो एक तरफ से बाण चला, और क्या मतलब हम लोग मोहित हो जाते हैं उन चीजों को देख करके। तो वैसी ही रचनाएं, वैसे ही बनाने की विधियां वहां सारी वर्णित हैं। इसी तरीके से आगे गांधर्व वेद की बात आती है कि जितना, और साथ में मालूम वहां बताया क्या गया विशेष, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबके प्रयोजन बताए गए हैं सर, कि इसका प्रयोजन क्या है। अब जैसे धनुर्विद्या है, इसका प्रयोजन क्या हो सकता है बताइए, आप लोग सोचिए। शत्रु पर विजय, शत्रु का नाश करना। वो आज आप देख रहे हैं भारत के अनेक शत्रु खड़े हो रहे हैं। पढ़िए अपने शास्त्रों को, और हर साम दाम दंड भेद हर तरीके से हम उनका नाश करते हैं, तब अब भारत को हम विश्व गुरु बना सकते हैं। इसी तरीके से गांधर्व वेद का भी जो प्रयोजन बताया है, तो वो गांधर्व वेद का प्रयोजन, उपवेद का प्रयोजन जो है, जो हम लोग आजकल अभी डांस फॉर्म्स की बात हो रही थी, तो साइंटिफिकली बता रही थी मैम। तो इसी तरीके से हमारा भारतीय जो ज्ञान परंपरा के आधार पर उद्देश्य क्या है, तो वहां ये बताया गया देवताओं की आराधना करना। हम क्या वास्तविकता में अभी देवताओं की आराधना कर पा रहे हैं? हम नहीं। हम सबकी सोच कैसी हो गई है, 2 टर्म है, विद्या और अविद्या। ज्यादातर मैं देखता हूं अविद्या के पीछे हम लोग चल रहे हैं। अविद्या मीन्स आप नॉलेज के अपोजिट शब्द मत ले लीजिए। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, ईशावास्य उपनिषद जब हम पढ़ते हैं, तो वहां ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि विद्या अविद्या दोनों को जान करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो अविद्या कोई खराब चीज नहीं है, पर अविद्या क्या है, मैं अगर इसको समझाना चाहूं एक उदाहरण के माध्यम से। हम सब लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो क्रिकेट जानना और क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना जो है वो क्या है,
वो आपके लिए अविद्या हो सकता है कि हम खेलना तो जानते ही नहीं, पर क्रिकेट की जानकारी है कि उसमें 11 प्लेयर होते हैं, उसमें इस तरीके से ये ऑफ साइड है, ये लेग साइड है, ये फास्टर है, ये स्पिनर है, ये इस तरीके की ये चीजें विद्याएं हैं। एक चीज आपने जान ली तो एक से काम नहीं चलने वाला है, दोनों चीजों को जानिए, खेलना भी जानिए और आप उसके बारे में जानिए, तब तो वो विद्या और अविद्या दोनों चीजें जान करके हम तो ठीक वैसे ही आज हम सब लोग सारे लोग जो भाग रहे हैं पीछे, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे कमाने के पीछे, उसका सदुपयोग क्या है वो तो करना सीखिए। तो इसी तरीके से आगे एक और जो बहुत मतलब कह सकता हूं रिलेवेंट है कि हमारे ऋषियों में ही काम शास्त्र की रचना करने वाला ऋषि वात्स्यायन, अब आज एजुकेशन में उसको ऐड करने के बीच में पिछली सरकारों ने प्रयास किए, पर उसका उनका पर्सपेक्टिव अलग था, उनका ये उद्देश्य नहीं था। पर हमारे महर्षि ने जिस शास्त्र की रचना की उसका उद्देश्य आप जानते हैं क्या है? काम शास्त्र के माध्यम से वैराग्य की वृद्धि करना चाहते थे वो, कि हम सब में क्या वैराग्य विरक्ति की भावना जागृत हो। तो इस तरीके से मैं ये आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। बहुत सारे और आप अभी एक रिसेंट आप देख लीजिए, धर्मेंद्र जी उनकी हेल्थ खराब हुई और मीडिया में उनकी डेथ की घोषणा हो चुकी थी। ये क्या है? इसके लिए सर आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो इमोशंस की बात आई है उन इमोशंस को पढ़िए। हम लोग सब लोग इमोशंस लेस होते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर भाव है ही नहीं। तो भाव नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर हम गलत रास्ते पे चलते ही चले जाएंगे। तो इसलिए मैं बड़ा ही बहुत ही एक तरीके से उत्साहित हूं आप लोगों के बीच में आकर के। मुझे अक्षय जी ने बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ आप लोगों को देख करके कि आप इतने सारे बच्चे हैं जो जागरूक हो चुके हैं, इसे हम आगे लेकर के जाएंगे, इसको बीच में नहीं छोड़ना है आप लोगों को। हम सही मायने में कि आपको क्लास में साइकोलॉजिकल अप्रोच लेकर के अपने शास्त्रों की तरफ ले जाएंगे निश्चित तौर पर। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, अभी फिलॉसफी की मैम बात कर रही थी। ये फिलॉसफी जो है ना, आज के सिनेरियो में आप जानते हो क्या चीज है? साइकोलॉजी है, हमारी एंशिएंट साइकोलॉजी है। आप सबसे ज्यादा अभी परेशान मोबाइल चला करके रील स्क्रॉल कर करके सबसे ज्यादा दिक्कतें कहां हो रही हैं? हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब आप इसका साइकोलॉजी दो टर्म से बना है, साइको और लॉजी। लॉजी विज्ञान है और साइको क्या है? मेंटली तो है सारी चीजें, मेंटल बिहेव का स्टडी करना ही तो है साइको। हमने उसको फिलॉसफी कह दिया। फिलॉसफी का मीनिंग है विद्या के प्रति प्रेम। तो जिस दिन हमें विद्या के प्रति प्रेम हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। इसके लिए सारा योग शास्त्र जिसमें 5 जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको आप हम समझें, निश्चित तौर पर मेंटल प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएंगी। हम इसी तरीके से 5 वृत्तियां, चित्त की वृत्ति, आज जो मोबाइल या हम इस तरीके के विषयों में फंस रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? हमारी वृत्ति। वृत्ति क्या है? हम योग के माध्यम से अनुशासन अपने आप में क्रिएट कर लें। हम अथ योगानुशासनम या चित्त वृत्ति निरोधा, कि हम चित्त की वृत्ति का अपने आप में कंट्रोल करना सीख लें, उसको नियंत्रित करना सीख लें। तो इस तरीके से हर एक, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से आप अपनी चित्त वृत्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अनुशासित रह करके अपने जीवन को अनुशासित बना। अब देखिए ना, हम लोग, आप लोग टाइम से यहाँ बैठे थे, हम लोग लेट थे, तो ये थोड़ा सा अनुशासन हम और अच्छा करेंगे तो समाज में और अच्छा हमें दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग, चाहे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, चाहे पाणिनि के जो आपका दाक्षी उनकी माताजी के नाम से रखा गया, उसका नाम है हमारा, तो महर्षि पाणिनि ने तो बहुत ही कमाल की साइकोलॉजी अपने, और वो शायद शब्दों के माध्यम से, पदों के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। तो निश्चित तौर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो इस तरीके का जो हमारा ये इनिशिएटिव है भारतीय ज्ञान परंपरा का या भारतीय ज्ञान प्रणाली, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत पहले जुड़ रहे हैं। आगे विश्व गुरु बनेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग नीम के पत्थर साबित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धर्मेंद्र जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी का जो संकेत है उसमें से जो निकल के आ रहा है वो ये है, उसे ही यूरोप में सोशल कैपिटल कहा जाता है और भारत का पूरे विश्व में सोशल कैपिटल सबसे हाई है। और वो सोशल कैपिटल जैसे हम गंवाना शुरू कर देंगे, वैसे ही हम तो अपनी पीठ तो कर ही लेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम की ओर, लेकिन हमारी पूरी सभ्यता की ओर भी हम पीठ दिखाना शुरू कर देंगे।
क्योंकि आज जिस सोशल कैपिटल का हवा बना हुआ है यूरोप में, रॉबर्ट पुटनम को मैं कोट करता हूं, 1992 से ये काम चल रहा है सोशल कैपिटल। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज चले जाइए, यूएस चले जाइए, प्रॉब्लम ये है कि यूएस में आज 50% से ज्यादा बच्चे अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ नहीं रहते। सोशल कैपिटल गॉन। और हमारा सोशल कैपिटल, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता और हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा आखिरी प्रश्न है, द यंग डायनामिक आवर नीरज सर, आप नेवी में हैं, आप प्रेजेंट में इस भारतीय परंपरा को या फिर इंडियन साइंस को कैसा देखते हैं? आपके रोजमर्रा की जिंदगी में उसका कितना यूज हो रहा है, या फिर आपके क्षेत्र में नई चीजें आ रही है जो भारत के स्तर पे निर्माण हो रही है, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और स्पेशली अक्षत का कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम अमंगस्ट यू। जहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात है, सारी संस्कृतियां, जैसे उपासना ने बताया और भी पैनलिस्ट ने बताया कि सारी संस्कृतियां, यू टेक एनी सिविलाइजेशन फॉर दैट मैटर, ग्रीक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन टू एन एक्सटेंट, दो चाइनीज सिविलाइजेशन exist to this day, but उनका जो texture है, उनका tenor और उनका societal makeup है, that has completely changed. Why we have survived as a civilization? आप अपने आप से एक बार सवाल कीजिए, इतने आक्रांता है, we have been humiliated for last 1000 years if you post independence time को अगर आप हटा दें तो, but still how we have been able to survive as a civilization is primarily because of our एजुकेशन एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ आवर फैमिली एज ए यूनिट, जो हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में। अब मैं उसमें एजुकेशन का, जैसे मुझसे पूछा गया है, मैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट बताता हूँ कि आपकी एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी क्यों होती है। आपने जब आप एज यू आर ग्रोइंग अप, और जब हमसे भी जो सीनियर लोग बैठे हैं, व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, बिकॉज दे वर टोल्ड दिस थ्रू स्टोरीज, ग्रैंड मदर कहानियाँ बताती थी आपको कि ऐसे होता है चांद, ये ऐसे होता है, आप बड़ों के पैर छुएं, आप कोई भी काम करने से पहले, आज भी आप मंदिर के सामने से निकलते हैं तो इनवेरिएबली आप सर झुका लेते हैं। ये आपकी मसल मेमोरी में कैसे डेवलप हुआ होगा। और 1000 years हमारी जो सिविलाइजेशन है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इतने ज्यादा टेक्स्ट, इतने ज्यादा हमारी मसल मेमोरी में आ चुका है कि किसी का भी रिस्पेक्ट करना, आज भी आप चीटी के ऊपर पैर रख देते हैं तो यू फील दैट गिल्ट, नो, किसी भी चीज का आप बुरा करते हैं तो आप एक गिल्ट आप फील करते हैं। व्हाई यू फील दैट गिल्ट? आप किसी और, बाकी में किसी मजहब से या किसी उससे तुलना करना यहाँ पे बिल्कुल ही गलत होगा, बट आप एक बार सोचिए कि आप कुछ भी बुरा करने के काबिल हैं, आप काबिल नहीं हैं, उसका आप अपने आप से सवाल पूछिए। ये सारा आपका एजुकेशन सिस्टम से, जितनी भी आप एजुकेशन, आपको कभी भी कुछ ऐसा, आप जैसे महाभारत में आप गीता का भी आप देखिए, आप रामायण आप पढ़िए, आपको हर एक जो लेसन होगा, दैट लेसन विल बी ईदर इन ह्यूमिलिटी, आप अच्छा कैसे बन सकते हैं, आप कैसे अपने पेरेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। राजा दशरथ के एक वचन देने से राम भगवान 14 वर्ष का वनवास चले जाते हैं। कैकेयी माता को जो वो श्राप भी देते हैं तो ऐसा देते हैं कि जो आज भी हम आप आज के बाद किसी भी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखा जाएगा। आज तक आपने किसी का नाम कैकेयी सुना है? नहीं सुनोगे। आप जितनी भी परंपरा, अगर आप छोटी से छोटी चीज, ऐसा नहीं है कि महाभारत को जानना आपको ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है। और मैं इस मेरे जो मुझसे पूछा गया उसके आंसर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा यहाँ पे इस पड़ाव पर कि जो आप अपनी सोसाइटी में और आपकी आने वाली जनरेशन में, और जो आप मैसेज पास करते हैं आपसे छोटे जन को, आपसे बड़े जन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बड़ी वाली जनरेशन ने भी दूसरा फैसेट देखा हो, व्हेन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाज मेकिंग इनरोड्स इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने भी वो चीज देखा हो। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे ये बनती है कि आप उनको, उनके अंदर जो लेसन्स हैं, रामायण में जो लेसन्स हैं, महाभारत में जो लेसन्स हैं, जो आजकल हमारी सोसाइटी में दोबारा से जैसा कि सबने बताया कि एक रिवाइवल का फेज से जो हम गुजर रहे हैं, हमें इसको अप्रिशिएट करना है, इस पे कैश इन करना है। और इससे कैश इन करने का सबसे जो आसान तरीका है, और सबसे जो मैं कहूँगा कि सबसे जो तरीका आपको उसके नज़दीक लेके जाएगा, आपको विश्व गुरु बनाने के, या फिर आपको एक अच्छी सोसाइटी जो हम ऑलरेडी है उससे और ज़्यादा बनाने के लिए, वो है आपका लिखना और आपका पढ़ना। अभी आज के दिन में सबसे सैड बात है कि आपने
कितनों ने, एक बार जस्ट आस्क योरसेल्फ वेरी ऑनेस्टली, कितनों ने लास्ट हिंदी साहित्य का बुक पढ़ा है या लिखने की चेष्टा की है? हैंड रेज करिए। सो देखिए, आपके यू नो द आंसर्स। तो अभी जो आप देखेंगे आज के दिन में, जैसे हम रामधारी सिंह दिनकर जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, उनका महल आंचल पढ़िए, या फिर राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का पढ़िए। आज के दिन में जब तक हम अपनी भाषा में, जैसे हमें बताया धर्मेंद्र जी ने कि आप अपनी, जब आप पीठ अपने अपोजिट कर देंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब आप उस भाषा में जब अगर आपके जो बेसिक मूल सिद्धांत है किसी भी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की, कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप बातें कैसी करते हैं, और आप लिटरेचर क्या पढ़ते हैं। अगर आपकी सारी लिटरेचर, सब कुछ आप अपनी लिटरेचर से दूर जा रहे हैं, आप अपने बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको रश्मि रथी नहीं आपको पढ़ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आप उसमें संकोच कर रहे हैं। इफ यू डोंट टेक प्राइड इन व्हाट यू आर, I mean, how do you expect people to take pride in you? आप कहीं पे भी जाके अपनी संस्कृति के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, आप उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं ला सकते हैं। और enough and more has been said about it, so मैं नहीं कहूँगा कि ये हमारे बीच में जागृत नहीं है, या फिर हमारी जो फिलोसफी है that is, I mean, very much separated or it's in isolation with science, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप जब कभी बचपन में बीमार होते थे तो आपको क्या दिया जाता था? कोई भी दादी माँ का दिया हुआ नुस्खा, और हम सब ठीक हो जाते थे। आपको फियर हुआ है, आपको यहाँ पे एक धागा बांध दिया जाएगा, या आपको कुछ जो अपना घर का चीज है वो आपको दे दिया जाएगा, और आप तुरंत ठीक हो जाते थे। इन सब का प्रॉब्लम विद प्रीवियस जनरेशन वाज कि वो उस चीज को शायद हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर हम उनसे पूछते कि बुखार ऐसे ठीक क्यों हो गया, शायद वो हमें उस तरीके से बता नहीं पाए। शायद जैसे आपको अभी उपासना जी ने बताया कि ये हमारे लिए क्यों है, ये अपनी सबसे पहले हम क्यों अपना वंदना से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सारी चीजें हम बता पाए अपनी सोसाइटी में, एंड इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग। अभी आप देखेंगे कि कुछ लिटरेचर, वेदर इट्स इन इंग्लिश और अभी कुछ इंग्लिश में जैसे लिटरेचर आ रहा है, अभी पिछले 10 साल में जो हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में लिखा गया है। आप चाहे किसी का भी आप नाम लीजिए, कोई भी जे साई दीपक जी हैं, विक्रम संपत जी हैं, जो हमारे हीरोज हैं। क्योंकि अगर आपको बचपन से कोई चीज फीड करा दी जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा गुलाम ही रहे हैं, आप हमेशा यू हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, आपके अंदर ये जैसे हम जेम्स मिल का देखें या रुडयार्ड किपलिंग का देखें, आप किसी का भी ले लीजिए, चर्चिल का देखें, हमारे बारे में जो उनकी धारणा रही है, अगर हम उसी को जीते रहेंगे, उसी को समझते रहेंगे, उसी को हम अपने आप को उसी आईने से देखते रहेंगे, तो शायद हम कभी अपने आप में गर्व महसूस नहीं कर पाएंगे। एंड सैड पार्ट अबाउट एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का गिरना सबसे ज्यादा वहीं से स्टार्ट होता है जब अपने बारे में आप गर्व महसूस नहीं करते। मैक्यूलेस मिनट्स ऑफ मीटिंग आप सबने पढ़ा होगा और सुना होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अगर उसमें 8 पेज 35 से 43 पेज, अगर आप उस 8 पेज को पढ़ें तो उसने कुछ गलत नहीं लिखा। अगर मैं उसके पर्सपेक्टिव से अभी एक आपको आईना दिखाना चाह रहा हूं कि उसने कुछ गलत नहीं लिखा। उसने लिखा कि जब तक ये इंडियंस को, आपको अगर सेंचुरी टिल द टाइम इंडिया विल एग्जिस्ट, अगर आपको तब तक इनको गुलाम करना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, इनका जो गुरु चेला सिस्टम है, इनकी जो ज्ञान परंपरा है, उसको आप तोड़िए। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इफ यू हैव टू एक्चुअली इनको गुलाम, इफ यू टू मेक देम फॉर सेंचुरीज टिल द टाइम इंडिया विल एग्जिस्ट, you break their guru chela system, you break their education system। अब सोचिए एक ब्रिटिशर को ये बात समझ में आ गई कि यार ये इतना स्ट्रॉन्ग, ये बिकॉज when they go for education उनको वो चाहिए नहीं होता है टीचर, उनको टीचर से जब वो जाने लगते हैं तो गुरु दीक्षिणा देते हैं, उसके अलावा उनको सिर्फ ज्ञान के अलावा कुछ बात ही नहीं होती है। एंड इट्स ऑल अबाउट डिस्कोर्स। हमने कितने सारे शास्त्रार्थ जो हम अपने डिस्कशंस को हमने हमेशा महत्व दिया है। आप देखिए मंडन मिश्रा का आपने डिस्कशन आदि शंकराचार्य जी के साथ, हमने हमेशा कभी सिर्फ आप उम्र में बड़े हैं या फिर आप दर्जे में बड़े हैं तो आपकी इज्जत है, आपका वो है, लेकिन ज्ञान किसका बड़ा है इज ऑल डिस्कोर्स। आप बातें कैसे करते हैं, आपकी समझ कैसी है, अच्छा ये चीज ऐसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमें एज ए सोसाइटी वी न्यू दैट अर्थ इज राउंड, हमें सबको पता था। एंड बाकी सिविलाइजेशंस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज यू सी ऑल अदर सिविलाइजेशंस पीपल वर इन डार्क एजेस लिटरली एज लेट एज 1632 और जस्ट चेक ईयर में भी गैलीलियो वाज हैंग जस्ट फॉर टेलिंग कि अर्थ फ्लैट नहीं है। आप सोच सकते हो 1600 सेंचुरी में भी हमारा भक्ति मूवमेंट भी निकल गया, हमारा गोल्डन एज सब कुछ निकल गया। उस टाइम पे गैलीलियो वन ऑफ द साइंटिस्ट इन दोस एंड ही वाज हैंग्ड।
आप सोचिए, तो आप किसी भी मायने में हमारी कोई तुलना नहीं है, और ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। गुड थिंग अबाउट अस इज दैट वी लिव इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, जहां पर आपको इस चीज का एप्रिसिएशन भी है। आप अगर इस चीज के बारे में लिखते हैं, आप जैसे लाइक्स ऑफ अमीश त्रिपाठी जी और विक्रम संपत जी, एज आई सेड, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जन जो इस बारे में लिखते भी हैं। अभी योगा का भी रिवाइवल है। ऐसा नहीं कि यार, अगर मैं आपको सच्चाई से दूर नहीं ले जाना चाहता, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें या फिर आप रोजमर्रा में कि आप क्या कर सकते हैं उसकी भी बात करें, तो भी इसमें अभी इतनी ज्यादा, जैसे उपासना जी ने बताया, देर आर numerous possibilities in this, and आप कितनी भी, हर एक universities now is shifting their course curriculum, slightly giving them courses in Ayurveda, yoga में काफी सारे हैं, yoga trainers are sought after। आपको किसी भी चीज का कमी नहीं है। आपको all you got to do is that change your आईना। आपका अपने सामने से एक बार मिरर हटा दीजिए और एक बार आप देखिए कि आपकी सोसाइटी को, बिकॉज एज आई सेड, हमारी जो सबसे समृद्ध बात है इस सोसाइटी की, कि हम अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। मेरी आपसे सिर्फ 2 दरखास्त हैं। एक जो आपकी फैमिली यूनिट है, दूसरा एजुकेशन। फैमिली यूनिट के बारे में मैं कहूंगा, जैसे बताया गया कि कितने सारे पेरेंट अपने बच्चों के साथ कुछ कंट्रीज में नहीं रहते हैं। वी आर सीइंग सेम ट्रेंड, हम ज्यादा दूर नहीं है उस चीज से। थिंग इज दैट अगर हम उसी तरफ ड्रिफ्ट होते रहे, अगर हम उसी तरफ जाते रहे, तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, और एक बार अगर फैमिली यूनिट टूट गया, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। बिकॉज जो आपका एजुकेशन का महत्व भी तभी है जब आपकी फैमिली यूनिट इज इंटैक्ट। तो सबसे पहले एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये कि प्लीज जो आपका फैमिली यूनिट है उसमें पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, जो आप सभी करते हैं। इट्स ऑल दैट यू गॉट टू पास दिस मैसेज थोड़ा थोड़ा, अगर आप पुश करके, और मे बी यू जस्ट कन्वे इट ऑन अ रेगुलर बेसिस थ्रू सम एग्जांपल्स, पर्सनल एग्जांपल्स, समटाइम बाय सेइंग, समटाइम बाय योर एग्जांपल, समटाइम पीपल सी इट। किसी भी चीज में अगर आप उसको पेरेंट्स को समटाइम रिक्वेस्ट करके, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी आपकी कुछ सालों बाद, या फिर आप जब बताएंगे वो, तो आपका बेसिक मुद्दा इज फैमिली। सेकेंड इज एजुकेशन। आप इतने आज एक सैटरडे आफ्टरनून में आप सभी इतने आए, ये हमारे लिए बहुत ही इंकरेजमेंट की बात है, बहुत ही हमारे लिए एक साहस लगता है इस बात को सुनने में। दूसरी बात यह है कि आप अपने साथ कितने लोगों को इसमें जोड़ पाते हैं, कितने लोगों को आप ये बात बता पाते हैं कि इसमें कुछ ज्यादा आपको टाइम नहीं चाहिए। आप जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है उसको डेली रोजमर्रा पे आप जीते हैं, रोजमर्रा पे उसका आपको महत्व देखने को मिलता है। आप कितनी भी चीजें आप जो करते हैं, आपके जो आपने जो शास्त्र या कुछ भी पढ़े होंगे, या उनका जो वेरिएंट्स है वो पढ़े होंगे, आपको हर रोजमर्रा में वो चीजें आपको करने को मिलती हैं। आपको पता है कि शाम को ये नहीं खाना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, आपका जीने का तरीका क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए, यंगर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये सब सारी चीजें हैं। ऑल वी गॉट टू डू इज रीड मोर। जो हमारे शास्त्र हैं किसी भी भाषा में, आपकी जो भाषा है उसमें तो मैं चाहूंगा कि उसी भाषा में पढ़ें, उसी भाषा में लिखें और उसी भाषा में उसका डिस्कशन करें। लेकिन अगर इसके अलावा भी आप लिखते हैं और किसी भी शास्त्र को, क्योंकि हर कोई आपकी तरह इस यूनिवर्सिटी में इतना ब्लेसेड नहीं होगा, हर एक की जो लाइफ का नेचर है वो इतना ब्लेसेड नहीं होगा। तो ये मेरी दरखास्त है कि आप उस चीज को पढ़ें और उस चीज को शेयर भी करें, उस चीज को बताएं भी कि आपने अगर मंडूका उपनिषद पढ़ा है तो आप उसको उसके बारे में बताएं कि इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप रामायण का कोई ऐसा फैसेट, क्योंकि हम रामायण को अभी जो और जो जनरेशन आ रही है वो बिट्स एंड पीसेस में, कि अच्छा ये था लेकिन ये नहीं पता इसका क्या था, अच्छा गिलहरी का क्या काम था पुल बनाने में, हमें ये नहीं पता है शायद कुछ, क्योंकि हमारी रामानंद सागर एंड बी.आर. चोपड़ा हम वहीं तक रह गए हैं। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा कुछ पढ़ते हैं तो आप अपनी सोसाइटीज को बताइए, बिकॉज द ओनली 2 थिंग्स दैट आई सी इम्पोर्टेंट टुडे, इफ यू हैव टू अगेन build pace for revival of Indian knowledge system, is our family unit, and second is your education. These 2 are very important facets. That's what I say. थैंक यू नीरज जी। अक्षित को सवाल पूछना है? नहीं। इस पूरे डिस्कशन में जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि इफ यू आर रोमिंग इन द पास्ट, देयर इज अ मेजर चांसेस ऑफ टू बी द पार्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट में रोम करना ये केवल इस पैनल डिस्कशन का उद्देश्य नहीं है। पास्ट बहुत ग्लोरियस था, उसमें ही रममान हो जाना, उसकी ही चर्चा करना, ये भी उद्देश्य नहीं है।
उद्देश्य ये है कि हमारे पास्ट को सामने रख के प्रेजेंट में हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंट अगर अच्छा करना है, केवल पास्ट की बात नहीं, उस पास्ट को याद रख के, उस एक ग्लोरीफाइड परंपरा को याद रख के वर्तमान हम कैसा बेहतर करें, हमारे वर्तमान में उसका इस्तेमाल कैसा हो सकता है, ये ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की संरचना करना इस पैनल डिस्कशन का उद्देश्य है। किसी ने कहा है कि बहुत भूतकाल की चर्चा करोगे तो भूतकाल का ही हिस्सा बन जाओगे। तो बहुत भूतकाल की चर्चा करते हो तो वर्तमान का भी ध्यान रखना है। ये इस पूरे पैनल डिस्कशन का मुद्दा है। आखिरी वक्तव्य मैं शुक्ला जी को देते हुए इस पैनल डिस्कशन का समापन करूंगा। इन लोगों का कुछ जिज्ञासा भी होगी। If there is any question, yes, कोई सवाल? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये बहुत ही विशाल है और बहुत ही गहराई लिए हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ षोडश संस्कार की बात की गई, तो जब गर्भाधान होता है उसी समय हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार होता है। उस संस्कार के बाद फिर हमारे यहाँ जो है अनेकों संस्कार हैं, और यहाँ तक कहा गया है कि जब बच्चा जब गर्भ में है तो आप जिस प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं या उस गर्भिणी स्त्री को सुनाते हैं, वेद है, पुराण है, भागवत है, जो सुनाएंगे, जिस प्रकार का आचरण करेंगे वो बच्चा उसी प्रकार का बनेगा। और इसके अनेक उदाहरण हैं। एक तो असुर संस्कृति का पुरोधा जो हिरण्याकश्यप था, जब उसकी पत्नी का हरण किया देवताओं ने, वो गर्भिणी थी और दोनों की हत्या करने वाले थे देवता लोग, तो नारद ऋषि जो है वहाँ रोकते हैं, कहते हैं आपको इस बच्चे से क्या द्वेष है जो गर्भ में है। तो कहने नहीं, हमारा जो है शत्रु है, ये पैदा होगा तो हमारा शत्रु होगा। तो कहे नहीं नहीं, आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र बन जाएगा, आप एक उपाय करिए। कहा क्या उपाय? तो नारद ऋषि अपने आश्रम पे ले जाते हैं और उसको जो है भागवत धर्म की शिक्षा देते हैं। और जब भागवत धर्म की शिक्षा दिए और जब उसके बाद जब वह पैदा होता है, वह प्रहलाद भगवान का अत्यंत वह परम भागवत होता है, और फिर वह अपने असुर संस्कृति से वो खुद लड़ता है। हिरण्याकश्यप जो है क्या क्या नहीं उपाय किया उसको समझाने के लिए, और जब वो नहीं माना तो उसके प्राण के लिए कितने कितने उपाय किए प्राण लेने के लिए। तो कहने का आशय ये है कि आज हमें बहुत सतर्क होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण न करें, हम अपने षोडश संस्कारों के ऊपर जाएं। और हमारे यहाँ ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है। आप कोई एक मार्ग पकड़ लीजिए, क्योंकि ये सारी शिक्षा जितनी आजकल दी जा रही है, ये केवल आपको जो है जीविका की तरफ ले जाने वाली है। ये आपके आत्मा का
उद्धार करने वाली नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राचीन ज्ञान परंपरा में, ऋषि परंपरा में जो है, सा विद्या विमुक्तये, विद्या वही है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए, जो आपकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करे। तो इसलिए अंत में आप जब चौथे पन में आएंगे तो उसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें 16 संस्कारों का पालन करना है, गीता अपने जीवन में उतारना है, सत्यमबद्ध धर्मम पे चलना है हमको। और यह कलिकाल, ये चारों युगों में सबसे सुंदर अगर कोई कालखंड है तो कलयुग का है। जो सतयुग में बड़े बड़े तप यज्ञ से जो कुछ नहीं होता था, त्रेता में बड़े बड़े आप तपस्या करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकते थे, वही आज जो है कलयुग में थोड़ी सी उपासना कर लीजिए तो आप ढेर सारा जो फल लेकर के आप जा सकते हैं। वही आपके लिए पाथेय होगा। लोकांतर में जहां भी ये जीव जाएगा वो प्रकाशित होगा। तो इसलिए आवश्यकता है मित्रों कि हम सतर्क होकर के हम भूसी न कूटें कि हम दौड़ें इधर उधर चकाचौंध में अपना जीवन बर्बाद कर दें ना। आप एक लक्ष्य बनाइए कि हमें जाना कहाँ है। बहुत क्या है, आप जो है रात दिन मेहनत करके आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, आपकी सारी एनर्जी उसी में नष्ट हो जाती है। फिर आप जाते हैं तो फिर वहाँ भ्रष्ट हो जाते हैं, 100 करोड़ 400 500 करोड़ रुपया कमा करके फिर आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो इसलिए आप जब योगी बनेंगे, हमारे ऋषि परंपरा में आपका जीवन होगा तो अति सुंदर जीवन होगा। और यही नहीं, एक तरफ 1 करोड़ लोग हों और एक तरफ केवल एक साधक हो जो हमारी ऋषि परंपरा का व्यक्ति हो, तो वह कुछ भी कर सकता है। और उसका उदाहरण हमारे वशिष्ठ ऋषि हुए। जब विश्वामित्र राजा थे, पूरी सेना लेकर के उनके आश्रम पर आते हैं और नंदिनी गाय को देख करके विमुग्ध हो जाते हैं, उसको देख करके, और फिर उसको जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं। जब वो नहीं देते तो जबरदस्ती उनको, जब उस नंदिनी गाय को लेके जा रहे हैं, तो एक बार वह गौ माता जो है उनकी तरफ बड़ी कातर दृष्टि से देखती है, क्या आपने अनुमति दे दी है? तो उन भरे अश्रु से वो कहते हैं कि नहीं, ये हठात ले जा रहे हैं, मेरी अनुमति नहीं है। फिर उस नंदिनी ने जो हुंकार करके अपने कानों से, अपने रोम रोम से सेना प्रकट की है, उस सेना ने जो है उन सारे लोगों को मार करके भगा दिया। तो इस प्रकार से जब जब विश्वामित्र उनसे लड़ने आए पूरी सेना लेकर के, केवल एक ब्रह्मदंड लेकर खड़े हो गए और सारी सेना नष्ट हो गई। तो इसलिए मित्रों, आप वह एनर्जी हासिल करिए, आपके अंदर वह पावर है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आप अपने शरीर को सतोगुणी बना लीजिए बस। अगर आपका यह पिंड सतोगुणी बन जाता है तो निश्चित है कि जो वह पार ब्रह्म परमेश्वर का जो सतोगुण स्वरूप है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका कोई रेडियो स्टेशन इस फ्रिक्वेंसी पर है और आप लगाइए रेडियो में, तुरंत बोलने लगता है। तो उसी प्रकार का ये आपका जो उत्तम ट्रांसमीटर यह आपका शरीर है, ये आप सतोगुणी बना लीजिए। उसके बाद आप चमत्कार देखते चलिए, कितना चमत्कार होता है जीवन। ये कोई किताबी बात नहीं मैं कहता, ये अनुभवजन्य बात बोल रहा हूँ। तमाम ऐसे साधक हैं जो अपने अनुभव को बांटते हैं, और जीवन ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने पूरा जीवन समाप्त कर दिया एक चीज प्राप्त करने के लिए। अरे बहुत कुछ है ना। तो इसलिए मित्रों, 16 संस्कार अपनाइए, सत्यमबद्ध धर्मम पे चलिए, और जो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण उसको छोड़ दीजिए। एक बहुत बड़ा आजकल जो हम लोगों के साथ जीवन से जुड़ गया, वो बहुत बड़ा अभिशाप भी है, ये मोबाइल। आज हमारी युवा पीढ़ी कितनी दिग्भ्रमित हो रही है, इसके कारण सारी एनर्जी अपनी बर्बाद कर रही है। तो इसीलिए हमें इसका उतना ही सदुपयोग करना जितना हमारे लिए ठीक है। आप साधना करिए, ध्यान करिए, योग करिए। देखिए, आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाइए। आपकी आंतरिक ऊर्जा जब जागृत हो जाएगी तो आप कुछ भी करने में संभव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ
पूरी सेना विपक्ष की खड़ी हो, दुश्मन की सेना खड़ी हो, एक तरफ एक जो है अपना साधक खड़ा होकर के उनको पराजित कर सकता है। और उसको दिखाया महाभारत के युद्ध में यह है अर्जुन ने। जब वहां विराट के यहाँ जो है छुपे हुए थे, तो सारे लोग जब पता पा गए कि वहां पर जो है वो छुपे हुए हैं पांडव लोग, सारी सेना लेके जाते हैं। लेकिन अर्जुन ने जो है अपने एक सम्मोहन बाण से जो है सारे लोगों को जो है सम्मोहित कर दिया और सारे लोग पराजित हो गए। तो इस कारण से आप उस ऋषि के संतति हैं, यह ऋषियों का देश है।